of a body without taking into account of its causes. So इसमें हम क्या करते हैं, खाली काइनेमेटिक्स में मोशन के बारे में पढ़ते हैं and the property associated with the motion. As the motion happens, the displacement comes into play, and the displacement changes with respect to time, it becomes velocity, and when the velocity changes with respect to time, it becomes acceleration, and when the acceleration changes with respect to time, it becomes jerk. Or we learn the property of the graphs. The displacement time graph, the slope represents the velocity, and the speed and the position time graph, the slope of the position time graph represents the speed. So हमने speed को पढ़ा, that is rate of change of distance with respect to time. फिर हमने instantaneous speed को पढ़ा और हमने average speed को पढ़ा. So you will face one question from the average speed or average velocity in your next month exam. And then we similarly studied about the velocity, instantaneous velocity and the average velocity. फिर हमने difference देखा था, what is the difference between the distance and the displacement. And finally we studied about the acceleration, uniform circular motion and the 2D motion, matlab motion in the 2D plane. Mainly the chapter 4 is covered by, the major concept is covered by the vectors. तो मैंने आपको बेसिक्स में ही वेक्टर सिखा दिया था बच्चों, जिनका नहीं हुआ निकल पढ़ाऊंगा, अगर कोई रिपीट करना चाहता है वो 3 बजे ज्वाइन करें. और हमने फिर सीखा उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम चैप्टर 4. द प्रोजेक्टाइल मोशन, सारे केस आने चाहिए, सारे उसके न्यूमेरिकल्स आपसे होने चाहिए. और उसके बाद हमने देखा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो हमने कंप्लीट कर लिया था. तो ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ, इसमें एक फर्क आपको देखने के लिए मिलेगा. यहाँ पे कहीं भी हमने फोर्स को कैलकुलेट नहीं किया, हमने फोर्स का जिक्र भी नहीं किया. सो वी वर जस्ट कैलकुलेटिंग द मोशन एंड everything associated with that, but we didn't study the cause of the motion, which force operating behind this moving body. So when we calculate that also, when we consider the force also, which is by which the body is being moved from one position to the another position, then the kinematics becomes the dynamics. Dynamics is the branch of mechanics which deals with the study of motion along with its causes. So बच्चों यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है लॉज ऑफ मोशन में. सो कहीं पर भी बेटा अभी ना डाउट के लिए टाइम नहीं है हमारे पास, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ अच्छे से, ताकि आप फर्स्ट टर्म में अच्छा स्कोर करो. तो जब मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं है तो तभी मुझसे पूछना है, क्योंकि अभी ये शुरुआत है इसकी. सो ये है लॉज ऑफ मोशन. Laws of motion. So suppose that there is a again straight path, and there is a body which is at point A. तो आपको याद रहेगा हमने ऐसी शुरुआत की थी हमारे काइनेमेटिक्स की. हाँ, so in the kinematics we only studied about change in position of an object with respect to time. So this is the motion. So now if say this body moved from here to here, from final to initial position, so how and why, क्यों ये मूव हो गई, क्या रीजन है, व्हाट इज द कॉज, इसके पीछे कॉज क्या है. तो अब हम इसके पीछे कॉज करेंगे, जो इसके पीछे की फोर्स ड्यू टू विच दिस बॉडी मूव्ड. ये बॉडी यहां से यहां पर आ गई. इस फोर्स ने या तो ये कांस्टेंट फोर्स हो सकती है, लगातार इसके साथ चल सकती है, या यहीं पे एक्ट करके इसको किक स्टार्ट करके यहीं फोर्स रह जाएगी, बॉडी आगे चली जाएगी. So there will be a variable force, there may be a constant force. So let us understand the concept of force. So we are defining the term force and its various effect on a body. So the force, it is an external agency. हाँ, ये सिस्टम हो गया हमारे पास. So it is an external एजेंसी. एक्सटर्नल एजेंसी, ये बाहर से एक्ट कर रहा है हमारी पे. इट मे बी ए पुश और ए पुल. सो
the external agency a push or a pull which changes or tends to change the state of rest or of uniform motion or direction of motion of a body is called force. It is called force. So what the force can do, the effect of the force, when the force applied on an object, it produces three types of change. When the force is applied on an object, it can produce three types of changes. What are the three types? So in the definition मैंने यहाँ पर लिख दिया, which changes or tends to change the state of rest. अगर कोई बॉडी रेस्ट पर इस पे फोर्स लगा दोगे तो वो उसकी पोजीशन में चेंज ला देगी. अगर कोई बॉडी पहले से मूव कर रही है यूनिफॉर्मली तो ये उसको भी चेंज कर सकती है, उसकी वेलोसिटी को कम कर सकती है, ज्यादा कर सकती है, और या उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकती है. स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर सकती है, यूनिफॉर्म मोशन को चेंज कर सकती है और डायरेक्शन को चेंज कर सकती है. तो जब हम फोर्स लगाते हैं तो ये तीन चीजें हो सकती हैं एक बॉडी में. तो सबसे पहले हो गया हमारे पास फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. Speed of an object, so making it move slower or the faster. So इसको आप ऐसे ले सकते हैं, अगर ये बॉडी कोई मूव कर रही है, सपोज दैट ये बॉडी मूव कर रही है और इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और इसकी वेलोसिटी हम मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकंड. अगर बच्चों ये कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है, बट आपने क्या किया, इट वाज मूविंग कॉन्स्टेंटली इन इनिशियली, देन यू अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन. आपने इस पर 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिया, तो फोर्स और इसके मोशन का डायरेक्शन सेम है, इन द सेम डायरेक्शन. तो ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, इट विल इंक्रीज. अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा तो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी. इफ द बॉडी वाज मूविंग in this direction with a certain velocity v and you just applied a force which is against the direction of motion, it will make it slower. So force and these two vectors, velocity is also vector, force is also vector, both are anti-parallel. Being anti-parallel, the force will cause the speed of this object to slow. तो इसकी वेलोसिटी कम हो जानी है यहाँ पे. अगर सेम डायरेक्शन में लगा देंगे स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, और अगर हम क्या कर देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में लगा देंगे तो ये स्पीड कम हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में ज्यादा हो जाएगी. जब आप ब्रेक लगाते हो तो एक्चुअली ये वाला सीन होता है. ब्रेक कॉजेस अ फोर्स अगेंस्ट
द डायरेक्शन ऑफ मोशन, एंड दी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन हो जाता है और बॉडी स्टॉप हो जाती है। तो ब्रेक से यही होता है ना। सो ये हमारे पास हो गया फर्स्ट। ये क्या कर सकती है, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है सेकंड जो फोर्स कर सकती है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन whenever a bowler balls towards the batsman. So batsman applied the force by his bats and the ball changes its direction. वही है simply, है ना। So force exerted on the steering also, है ना। अगर कोई बॉडी यहां से आ रही थी, हम मान लेते हैं ये बॉडी हमारी इस डायरेक्शन से आ रही है, ऐसे ऐसे मूव कर रही थी यहां तक, ये सेम बॉडी है और यहां पर एक फोर्स है ऑफ सर्टेन वैल्यू, इसकी कोई वैल्यू है ऑफ सम न्यूटन। दिस फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू इट्स मोशन, this having straight line motion, and suppose that the body was moving with uniform velocity v. This is the velocity of the object moving uniformly. It's supposed to go along this straight line. But what happens, and as the object approaches this position, जैसे ऑब्जेक्ट यहां पर आएगा, ये फोर्स इस पे एक्ट करेगी और बच्चों इसके डायरेक्शन को क्या कर देगी, चेंज कर देगी। So the force changes the direction of motion in its own direction. So there is a change in direction. Initially it was moving along the straight line, then it was affected by this external agency called force. It just changed its direction in the direction of the applied force. Force can change the direction. So स्कूल में आएगा तो बेटा ऐसे तो बनाने की जरूरत नहीं है। कार का स्टीयरिंग और हमारे स्कूटर का या बाइक का हैंडल भी वही करता है। हैंडल से हम क्या करते हैं, डायरेक्शन चेंज करते हैं, कार का स्टीयरिंग यूज करते हैं। एक्चुअली वी अप्लाइड द फोर्स ऑन द मूविंग व्हीकल व्हिच कॉजेस द चेंज इन द डायरेक्शन। सो फोर्स एक्सर्टेड ऑन द स्टीयरिंग व्हील ऑफ ए कार, इसका एग्जांपल हो गया the force exerted on steering wheel or simply steering of car changes the direction of motion. And the third effect of the force, it can change the shape or size. It can change the shape of an object. So whenever you take Coke, कैन से जब आप पीते हो, after finishing it, when you apply the force on by your fingers on the empty can of the Coke, it will be D-shaped. तो उसका शेप बिगड़ जाएगा ना, तो वो भी एक तरीके का चेंज हो गया शेप के अंदर। इसका एग्जांपल है, इफ यू होल्ड ए रबर बॉल, एग्जांपल, if we hold a rubber ball between our palms, and push the two palms against each other,
against each other, the ball no longer remains round. But gets oblong और bulged हो जाती है. But gets oval sized. So force can change the state of rest, state of uniform motion, or the direction of a object. Force also can change the shape of an object as well. तो ये बच्चों इफेक्ट हो फोर्स के. यहाँ पे एक चीज बता रहा हूँ, वैसे तो मैं कल बताऊंगा ही फोर्स के बारे में वेक्टर पढ़ाते हुए. जो फोर्स है इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, इसलिए ये पोलर वेक्टर है. Force is a polar vector because it has a point of application. ऐसा वेक्टर जिसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है उसको हम पोलर वेक्टर बोल सकते हैं. So force having two natures. Point of application मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बेटा देखो, ये हमने फोर्स कहाँ पे अप्लाई की थी? इस पॉइंट पे की थी ना, यहाँ पर. तो जब हम इसको अप्लाई किया तो इसने डायरेक्शन चेंज कर दिया, तो इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, मतलब एक डायरेक्शन होता है इसका. आया समझ में? नहीं आया वंश? चलो मैं बताता हूँ फिर से दूसरे एग्जाम्पल. ये देखो, वैसे देख लो फिर भी, ये ऑब्जेक्ट है और हम चाहते हैं इधर जाए. तो आपको पता है अगर इसको आपको लेफ्ट हैंड पे मूव कराना है तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे? एक फोर्स लगाओगे. फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा टूवर्ड राइट हैंड साइड, तभी ऊपर जाएगी. अगर आप इधर इसको मूव करना चाहते हैं, इधर से थोड़ी फोर्स लगाएंगे. तो पॉइंट फोर्स हैव ए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पोलर फोर्स. तो ये बेसिक चीज हो गई बच्चों, फोर्स. और चलो आगे चलते हैं. इसको नोट कर लिया? चेंज कर रहा हूं मैं स्लाइड. यस सर. सबको समझ में आ रहा है? ईशान कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? नो सर. ईशान और हिमांशु. हिमांशु इज द न्यू. यस सर, समझ आ रहा है. ओके गुड. इसीलिए मैंने सोचा कॉमन टॉपिक पढ़ाऊंगा, न्यू टॉपिक आपका सिलेबस टाइम से पूरा होगा. इसके बाद आता है बच्चों दैट इज कॉल्ड एरिस्टोटल्स फॉलेसी. Aristotle's fallacy. So it was a Greek. He was a Greek philosopher. उसका नाम है एरिस्टोटल. और he performed some practicals near about 2500 year ago. मतलब AD 300 or 400 के आसपास इसने किया था. So he asserted that natural state of body is the state of rest. So according to him means this person. He is a Greek philosopher, Aristotle. So according to him, the natural state of a body is the state of rest. So every body in motion tends to slow down and comes to rest. इसने लॉजिक लगाया, इसीलिए
every body which is moving tends to slow down and comes to rest. Therefore, every moving body tends to slow down and comes to rest. तो ये इसने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया था. So an external force is necessary. So an external force is necessary to maintain its motion. सर स्टेट ऑफ के बाद क्या लिखा है? State of rest. नहीं सर, उससे पहले नेचुरल Main, स्टेट. according to him, the natural state of the body is the state of rest. Therefore, every moving body tends to slow down and comes to rest. An external force is necessary to maintain its motion. तो ये ऐसा हो सकता है ना, अगर आप किसी फुटबॉल को किक मार दोगे, सो इट वाज नेचुरली एट रेस्ट. ये अपने आप तो अपनी स्टेट में चेंज नहीं ला सकती कोई भी बॉडी. व्हेन यू जस्ट किक द फुटबॉल, इट स्टार्ट टू मूव एंड इट्स मोशन becomes slower and slower and it comes to rest again. तो इस तरीके से एग्जांपल्स ने काफी सारे दिए. So according to the Aristotelian law, according to the Aristotelian law, according to Aristotelian law, हम जो पढ़ेंगे यहाँ पे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे ना, ये क्लासिकल फिजिक्स का वो है. अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटेलियन लॉ ऑफ मोशन, an external force is necessary to keep a body moving with uniform velocity. External force necessary to keep a body moving with uniform velocity. So this is the Aristotelian law. So according to Aristotle's view, actually it was proved wrong by the Galileo. It was proved wrong by the Galileo. And Galileo observed, ये बहुत साल पहले होता, 8,000 साल पहले लगभग. So about 2000 years later on, Galileo discovered or observed that external force were necessary to counter the opposing force of friction to keep bodies in uniform motion. If there were no friction, no external force would be needed to maintain the state of uniform motion of a body. So Galileo ने इसको प्रूव करा था कि नेचुरल स्टेट नहीं होती है रेस्ट जो बॉडी की. जब बॉडी मूव करती है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रह सकती है. अगर आप क्या कर दोगे, एक फ्रिक्शनलेस सरफेस बना दोगे. अगर हम एक फ्रिक्शनलेस सरफेस बना देंगे, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस, then the body will continue to move with its velocity. तो इस केस में वेलोसिटी यहाँ से यही रहने वाली है.
सो यहाँ पे फ्रिक्शन क्या करता है? एक्चुअली फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो मोशन के अगेंस्ट में काम करती है बिटवीन द सर्फेसेस, इसको हम पढ़ेंगे, ये फ्रिक्शन है। सो इस फ्रिक्शन को ओवर पावर करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। ये फ्रिक्शन है, तो अगर मैं इस बॉडी को चाहता हूँ कंटिन्यूली मूव करे अकॉर्डिंग टू द गैलीलियो, देन द एक्सटर्नल फोर्स इज needed. And according to Aristotle, they argue that the natural state of a body is rest. Therefore, in order to move it continually, external force is necessary. And the Galileo said that the natural state of a body is not the state of rest. Body can be at rest, body can be in uniform motion. If body is moving uniformly on a frictionless surface, then there is no need of an external force. It will continually move along its path. तो अगर कोई फोर्स नहीं, कोई बॉडी फ्रिक्शनलेस सरफेस पे मूव कर रही है और उसे कोई भी बाहर से फोर्स की जरूरत नहीं है, वो वैसे ही मूव करती रहेगी। ठीक है, अगर हम फ्रिक्शनलेस सरफेस पे बॉडी को मूव कराएंगे तब उसके मोशन को मेंटेन करने के लिए हमें एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है। तो ये गैलीलियो ने अपने आर्गुमेंट को दिया। ठीक है, सो गैलीलियो के कुछ एक्सपेरिमेंट है, ये पूछ लेते हैं अक्सर, वो हम देख लेते हैं पहले तेजी से ना। सो ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन देम ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस। सो अब हम पढ़ रहे हैं लॉस ऑफ इनर्शिया, ये गैलीलियो ने दिया था। सर एरिस्टोटल का लॉ गलत क्यों था? बेटा उसमें ये गलत इसलिए था, एरिस्टोटल ने बोला था कि जो एक ऑब्जेक्ट की नेचुरल स्टेट है, स्टेट ऑफ रेस्ट है, अगर आप उसको मूव कराना चाहते हो तो एक एक्सटर्नल फोर्स कंटिन्यूअसली उस पर मूव करनी चाहिए टू